تذکرائے روز و شب پر فکر زندگی، فکر زندگی، جے کے بینک ڈائری، جے کے بینک ڈائری۔ اتوار 1 ستمبر 2024 اور جے کے بینک کے آفیشیل براڈ کاسٹ جے کے بینک ڈائری کا تازہ شمارہ لے کر ہم حاضر خدمت۔ پروگرام میں آپ کا استقبال اور ہاردک ابھینندن۔ گزشتہ ہفتے بینک اور بینکنگ سے جڑے موضوعات سے آراستہ اس پروگرام کی شروعات آئیے کرتے ہیں اداریہ سے۔ دوستو، ہر وہ شخص جو ہمیں ایک شبد بھی سکھائے ہمارا استاد ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ہماری زندگی میں ہر وہ شخص ہمارا استاد ہے جو ہمارا ہاتھ تھام کر ہمیں نئی دنیا سے روبرو کرائے، نئے راستوں پر ہماری رہنمائی کرے، ہمیں کمانے کے قابل بنائے، ہمارے روزگار اور کاروباری معاملات میں ہمارا ساتھ دے، ہمیں فائدہ مند مشورے دے، ہمیں بھلے اور برے کی تمیز سکھائے، اور نہ صرف ہماری ترقی چاہتا ہو بلکہ ہمارے لیے ترقی کے راستے آسان بھی کرتا ہو۔ اس ہفتے ہم ٹیچرز ڈے منا رہے ہیں۔ ہماری طرف سے تمام ٹیچرز کو تہہ دل سے اس دن کی مبارکباد۔ جموں کشمیر بینک ایک مالیاتی ادارہ ہونے کے ساتھ ساتھ چونکہ ایک فائنینشیل پلانر، فائنینشیل کاؤنسلر اور فائنینشیل ایجوکیٹر کا رول بھی ادا کرتا ہے، لہٰذا ہر وہ بینکر جو آپ کی صحیح رہنمائی کرتا ہو، صحیح مشورہ دیتا ہو اور صحیح بات آسان لفظوں میں بڑے پیار سے آپ کو سمجھاتا ہو، آپ کے استاد کے برابر ہی ہوا نا۔ 5 ستمبر کو جب آپ اپنے ٹیچر کو تھینک یو بولیں گے تو ایسے محسن اور سنسیئر بینکرز کو نہ بھولیں جو صحیح مشوروں کے ذریعے آپ کی زندگی میں آسانیاں فراہم کراتے ہیں۔ انہیں بھی اس روز ضرور یاد کریں۔ جے کے بینک کے ملازمین اسی جذبے سے پچھلے 86 سالوں سے لگاتار کامیابیوں کی داستانیں لکھ رہے ہیں اور آئندہ بھی لکھتے رہیں گے۔ بس ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنے سے ہمارے رشتے اور بھی زیادہ مضبوط اور بھی زیادہ قریبی بن جائیں گے۔ ہیپی ٹیچرز ڈے۔ سامعین، دیش کے ہر ضلع کے ایک خاص پروڈکٹ کا چناؤ کر کے اسے وکست کرنا اور پھر مارکیٹ کر کے اسے اس ضلع کی پہچان بنانا ایک سرکاری اسکیم ہے جسے ہم ون ڈسٹرکٹ ون پروڈکٹ یعنی ODOP کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ اسکیم پورے دیش کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر اور لداخ میں بھی لاگو ہے۔ کشمیر سے تعلق رکھنے والے ایسے انٹرپرینورز جو اس اسکیم سے فائدہ اٹھا کر فارن ٹریڈ کے ساتھ جڑ رہے ہیں کے لیے جموں کشمیر بینک نے گزشتہ دنوں اپنے کارپوریٹ ہیڈ کوارٹرز میں ایک دن کے ٹریننگ کم کاؤنسلنگ سیشن کا انعقاد کیا، جس کی صدارت بینک کے جنرل مینیجر برائے گورنمنٹ بزنس سعید رئیس مقبول نے کی اور جس میں بینک کے دیگر اعلیٰ افسران اور انٹرپرینورز کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بینک نے ڈیپٹی ڈائریکٹر جنرل فارن ٹریڈ AK بھوشن اور ایکسپورٹ کریڈٹ گارنٹی کارپوریشن کے نمائندے کو بھی اس سیشن کے لیے مدعو کیا تھا تاکہ فارن ٹریڈ کی لوازمات کو اچھی طرح سے سمجھایا جا سکے اور اس میں حائل رکاوٹوں کے اوپر کھلی چرچا ہو سکے۔ جنرل مینیجر سعید رئیس مقبول نے شرکاء کو بتایا کہ یہ قدم بینک کے اس مشن کا حصہ ہے جس کے تحت ہم سماج کے ہر طبقے اور خاص طور سے نوجوانوں کو امپاور کر کے انہیں معاشی خوشحالی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کاروباریوں کے لیے بینک کا سپورٹ نہایت ہی اہم ہوتا ہے اور ہم آج کے اس سیشن کے ذریعے یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے دروازے ہر حوصلہ مند اور ترقی کے خواہاں افراد کے لیے کھلے ہیں۔ ہم نہ صرف ان کو کاروبار کے لیے پیسہ فراہم کرتے ہیں بلکہ ضروری صلاح و مشورہ اور معلومات بھی ان تک پہنچاتے ہیں اور قدم قدم پر ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ اس سیشن سے ہمارا مقصد انٹرپرینورز کی مشکلات اور امیدوں کو سمجھنا بھی ہے تاکہ ہم ان کے مسائل کا ہر ممکن حل بھی تلاش کر سکیں۔ اس موقع پر بینک کے AGM برائے فارن ایکسچینج سہیل احمد لون نے بینک کے پاس دستیاب فارن ٹریڈ پروڈکٹس کے حوالے سے شرکاء کو آگاہ کیا۔ اس ایونٹ کے آخر میں ایک کوسچن آنسر سیشن کے ذریعے شرکاء کے سوالوں کا تسلی بخش جواب دیا گیا۔ واضح رہے کہ بینک اگلے ہفتے ایسا ہی ایک کاؤنسلنگ کم ٹریننگ سیشن جموں کے زونل آفس میں منعقد کر رہا ہے جس میں جموں صوبے سے تعلق رکھنے والے سبھی اضلاع کے ODOP انٹرپرینورز شرکت کریں گے۔
सामीन, अच्छा काम कभी भी इस मंशा से नहीं करना चाहिए कि दूसरे आपके काम की तारीफ करें, लेकिन अगर आपके अच्छे काम की तारीफ या उसके एतराफ में कोई आपको खुद ही इनाम से नवाजना चाहे तो बात में कुछ और ही मजा है। पिछले माली साल यानी 2023-24 में आपके अपने जम्मू कश्मीर बैंक ने तारीख साज मुनाफा दर्ज किया। 1767 करोड़ का खालिस मुनाफा हमारी टर्न अराउंड स्टोरी का सबसे ताबनाक बाब है, जिसकी तारीफ और तौसीफ मुल्क के वजीर अजम श्री नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर खजाना ने बारहा अपनी तकारीर में की। और इस सिलसिले में एक खूबसूरत इजाफा पिछले हफ्ते उस वक्त हुआ जब मुल्क की एक जानी मानी ट्रेड बॉडी इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित सेकेंड आईसीसी इमर्जिंग बैंकिंग कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स 2024 के दौरान जेएनके बैंक को मिड साइज प्राइवेट सेक्टर बैंक कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मेंस इन प्रॉफिटेबिलिटी पर गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया। बैंक की तरफ से ये अवार्ड नई दिल्ली में बैंक के जनरल मैनेजर और डिविजनल हेड रेस्ट ऑफ इंडिया राजेश गुप्ता ने हासिल किया। इस अवार्ड के बारे में इजहार मसरत करते हुए बैंक के एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश ने कहा कि ये निहायत ही गर्व और सम्मान की बात है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हमारी परफॉर्मेंस को सराहा गया। हमारे ग्राहकों और स्टाफ की अनथक कोशिशों के नतीजे में हमने जो संग मील अबूर किए हैं वो हमें इंडस्ट्री में एक मुनफरिद मकाम हासिल करने में मददगार साबित होते हैं। उन्होंने कहा कि इस एजाज से न सिर्फ हमारी कामयाबियों पर मुहर सब्त होती है बल्कि ये हमारे मुस्तकबिल के मंसूबों में भी हमारी रहनुमाई करेगा ताकि हम बैंक फॉर ऑल जनरेशंस के अपने दायरे को मजीद तौसी दे सकें। जम्मू कश्मीर बैंक ने अपनी शानदार कारकर्दगी के बल पर मुल्क की सतह पर अपने नाम का लोहा मनवाया है और ये कि हम गाहक दोस्त रवैये, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी और सेवा से स्वाभिमान के अपने मूल मंत्र पर केंद्रित रहकर नए कीर्तिमान प्राप्त करेंगे। दोस्तों, कारोबार के अपने उसूल और जवाबित होते हैं और एक अच्छा कारोबारी वही है जो लेन देन के मामलात में बिल्कुल साफ हो। बैंक भी एक बड़ा कारोबारी इदारा होता है जो लोगों से पैसा डिपॉजिट की सूरत हासिल करके कारोबारियों को लोन की सूरत वो फराहम करता है और लेन देन का ये मामला साफ रहे, हमारी यही कोशिश रहती है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन बड़ा जरूरी है, वगरना ऐसा होता है कि अकाउंट एनपीए हो जाता है। ये एनपीए क्या है, इसके नुकसानात क्या हैं और हम प्रॉपर फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे मेंटेन रख सकते हैं, बात करने के लिए हमने आज मदऊ किया है बैंक के जनरल मैनेजर बराए आईएपीएम जनाब राजेश मल्ला तिकू जी को। तिकू जी, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। थैंक यू जावेद साहब। जानना चाहेंगे कि ये एनपीए क्या है, इसका जो मतलब है थोड़ा सा हमारे सामाइन को समझाइए। जी, सबसे पहले तो सभी जो हमारे कस्टमर्स हैं, ग्राहक हैं, उनको मेरा आदाब और नमस्कार। ये जो आपने एनपीए की बात की है, एनपीए मीन्स इसका मतलब है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जो हम लोन बैंक देता है लोगों को, वो बिजनेस के लिए देते हैं, मकान के लिए देते हैं, किसी गाड़ी के लिए देते हैं, एजुकेशन के लिए देते हैं, तो उसको हम परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। अगर उस परफॉर्मिंग एसेट जो है, जो लोन है, अगर उसकी किस्त बैंक को 90 दिन तक वापस नहीं आती है तो वो अकाउंट एनपीए हो जाता है। अच्छा, अपने अकाउंट को एनपीए होने से क्यों बचाना चाहिए और अपने अकाउंट को हमेशा स्टैंडर्ड ही क्यों रखना है? देखिए, जब तक आपकी रिलेशनशिप बैंक के साथ स्टैंडर्ड रहेगी, बैंक आपकी हर क्रेडिट नीड है, जो ज़रूरत है आपको कभी भी किसी भी बिजनेस के लिए, आपको बच्चे के एजुकेशन के लिए, आपको घर बनाने के लिए, जब भी आपको पैसे की ज़रूरत होगी तो बैंक उस टाइम आपको वो सहूलियत दे देगा। और अगर आपने उस पर डिफ़ॉल्ट किया तो आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो इम्पैक्ट होती है। अगर आपने हमारे बैंक से लोन लिया, वहाँ डिफ़ॉल्ट किया, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब हो जाती है, आप किसी दूसरे बैंक के साथ फर्दर लोन नहीं ले सकते। तो उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप अपनी बिजनेस को स्मूथली चला नहीं पाएंगे। तो इस यहाँ आपने जिक्र किया कि दूसरे बैंक से लोन, तो इसमें एक गालिबन सिबिल स्कोर का जो एक बड़ा अमल दखल है, ये सिबिल स्कोर क्या है और इसकी अहमियत क्या है? बैंकों के पास एक टूल है जिसमें हम क्रेडिट हिस्ट्री बोरोवर की देखते हैं। ये सभी बैंक यूज़ करते हैं कि इसका कंडक्ट कैसा रहा है अकाउंट चलाने का। जी, अगर वो स्कोर कम होगा तो बैंक जब क्रेडिट डिसीजन लेता है तो वो उसको अवॉइड करता है। कोशिश यही होनी चाहिए कि अपनी जो किस्त है वो टाइम पे जमा करें, कहीं डिफ़ॉल्ट ना हो। सारे बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसको
फर्दर लोन देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ऑफर, बल्कि ऑफर करेंगे। जी। अच्छा सर, एक बात जानना चाहेंगे कि पिछले चंद सालों से लोगों ने कुछ नई टर्म्स सुनी बैंक में, जैसे SMA1, SMA2, LTO वगैरह। थोड़ा सा हमारे सामईन को बताइए कि ये टर्म्स क्या हैं और इनका मतलब क्या है। जी, ऐसा है, जब आपने लोन ले लिया, मान लीजिए आपने किसी महीने में लोन लिया, जी। उसकी किस्त जो होती है वो 1 महीने के बाद आपको ड्यू होती है। जी। अगर आप वो किस्त नहीं देते हैं, वो जो ड्यूज है उनको कैटेगराइज, उस अकाउंट को कैटेगराइज किया जाता है SMA0, SMA1 और SMA2। SMA0 हो गया जहां आपकी किस्त 30 दिन तक नहीं आई है। SMA1 होता है 30 दिन से ऊपर, 60 दिन तक, और SMA2 जाता है 60 से ऊपर, 90 तक। 90 तक। और 90 और तक भी 90 जैसे ही क्रॉस होता है वो अकाउंट NPA होता है। और LTO क्या है। LTO ऐसा होता है जैसे आपने कोई CC लिमिट लिया है, वर्किंग कैपिटल लिमिट लिया है बिजनेस रन करने के लिए। अगर आपने उसमें, जैसे आप डेबिट्स कर रहे हैं, आपकी लिमिट मान लीजिए 10 लाख रुपए है जी। और आपने यूज़ किया 8 लाख रुपए, उसके बाद आप उसमें डेबिट्स करते हैं पूरे महीने में। अगर आप डेबिट करते हैं और वो विदिन लिमिट रहता है, लेकिन उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट कोई उस अकाउंट में नहीं आता है, डेबिट्स ज़्यादा होते हैं, क्रेडिट्स कम होते हैं, जी। तो वहाँ आता है लो टर्नओवर। LTO होता है लो टर्नओवर टर्नओवर, ओके। उन अकाउंटों में टर्नओवर नहीं होता है, उसकी वजह से वो SMA0 में जाते हैं, फिर SMA1 में जाते हैं, फिर SMA2 में जाते हैं। और अगर 90 दिन तक आपका क्रेडिट्स लेस देन डेबिट्स होंगे अकाउंट में, वो NPA हो जाता है। तिको साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि गारंटर्स की कहीं कहीं भी शिकायत रहती हैं कि उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो जानना चाहेंगे आपसे कि गारंटर्स की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, और अगर कोई शख्स किसी दूसरे, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार के अकाउंट में गारंटर की हैसियत से रहना चाहता है, तो कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर उनको लेनी चाहिए गारंटर रहने से पहले। देखिए, जब आप कोई आपको अप्रोच करेगा कि आप मेरी गारंटी दो, सबसे पहला मेरी जो ड्यूटी है, मुझे देखना है कि जिस बंदे की मैं गारंटी दे रहा हूँ क्या वो वर्थ है, सही बंदा है, क्या वो उसकी नेटवर्थ इतनी है, क्या वो अगर कल लोन नहीं देगा तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। जी। लीगली क्या है कि गारंटर की जो लाइबिलिटी है, इट रनस पैरेलल टू द बारोवर, ये बारोवर के साथ साथ ही चलती है। जी। जितनी लाइबिलिटी बारोवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिपेमेंट, उतनी ही लाइबिलिटी है गारंटर्स की। जी। और इसमें गारंटी में ये भी होता है कि जो लीगल हियर्स ऑफ बोथ बारोवर एंड गारंटर, दे आर आल्सो लायबल टू पे द बैंक ड्यूज। जी। तो इसलिए जब भी गारंटी आप देंगे, सोच समझ के देंगे और उसी को देंगे जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं। और आखिर में आपसे तिको साहब ये जानना चाहेंगे कि बहैसियत जनरल मैनेजर इम्पेयर्ड एसेट्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, या जिसको हम NPA मैनेजमेंट कहते हैं, आपकी एक नसीहत या एक सलाह क्या रहेगी। देखिए, ऐसा है, बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है? बैंक का पैसा जो आता है वो लोगों का डिपॉजिट है। जी। जो आपने पैसा हमारे पास डिपॉजिट रखा है एज ए डिपॉजिटर, वही हम डिप्लॉय करते हैं टुवर्ड्स लेंडिंग। जी। और जब लेंडिंग हम करते हैं तो लेंडिंग करते हैं बिजनेस की ग्रोथ के लिए। जी। अगर उसमें डिफ़ॉल्ट होता है, हमें जो है पैसा वापस नहीं आता है, लेकिन डिपॉजिटर को हमने टाइमली देना होता है, जी। तो उसका ह्यूज इम्पैक्ट बैंक की हेल्थ पर आता है। जी। सो ये हर एक की ड्यूटी है, जिसने लोन लिया है वो टाइमली रिपे करे। जितना लोन लेना है, उसमें कोई बाइंडिंग नहीं है कि आपको रिस्ट्रिक्ट करेंगे हम बिजनेस के लिए, तो वो प्रॉपरली इसको यूज़ करे, अपना प्रॉफिट भी कमाए, बैंक को रिपेमेंट टाइमली करे, ताकि बैंक भी अपने डिपॉजिटर्स को एट द राइट टाइम, जब उनकी डिमांड होगी, उनको भी रिपे करे। तो हमारी एक मॉरल ड्यूटी भी है कि हमें जो लोन लिया है उसको हम टाइमली रिपे करें, ताकि हमारी हिस्ट्री, क्रेडिट हिस्ट्री भी ठीक रहे, बैंक का हेल्थ भी ठीक रहे और ओवरऑल इकोनॉमी भी ग्रो करे। राजेश मला तिकू जी, JK बैंक डायरी के साथ इस अहम विषय पे बात करने के लिए आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इनामी सवाल की बारी। दोस्तों, गुज़श्ता हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि आपके मनपसंद प्रोग्राम JK बैंक डायरी ने ब्रॉडकास्टिंग के कितने साल मुकम्मल किए, और इस सवाल का सही जवाब है 23 साल। इस हवाले से हमें कई सारे ईमेल मौसूल हुए, जिनमें बेशतर जवाबात सही दिए गए थे, लेकिन लकी ड्रॉ के जरिए चुने गए आज के 3 लकी विनर्स हैं। कश्मीर डिवीजन से डोरू अनंतनाग के उबैद निसार, जम्मू डिवीजन से पोगल परिस्तान के चैन सिंह और लद्दाख से लेह के जिगमैत यंगसित। इनाम जीतने वाले सभी दोस्तों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब नोट करें आज का इनामी सवाल। दोस्तों, आपको बताना होगा, सेकेंड ICC इमर्जिंग बैंकिंग कॉन्क्लेव अवार्ड्स 2024 में जम्मू कश्मीर बैंक को किस क्षेत्र में गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया। आपके ऑप्शंस हैं प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन या टेक्नोलॉजी।
آپ کے جوابات ہمیں 5 ستمبر سنیچروار شام 5 بجے تک ہمارے ای میل آئی ڈی پر موصول ہونے چاہیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے jkbankdiary@jkbmail.com. تو لیتے ہیں آپ سے رخصت اگلی اتوار تک. جب تک کے لیے جڑے رہے ہماری 24/7 بینکنگ سروسز کے ساتھ، اور کسی بھی جانکاری کے لیے ڈائل کریں ہمارا ٹول فری نمبر 1800-890-2122. ابھی آپ سن رہے تھے جے کے بینک ڈائری، پیشکش کارپوریٹ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ، JNK بینک.